So to illustrate this case, I am writing a question, and based on the question I will explain what is the actual simplex method. So the question is, suppose I am taking objective function as maximum z equal to 5x1. Equation is suppose 3x1 plus 5x2 less than equal to 15. Next constant equation is 5x1 plus 2x2 less than equal to 10, and x1 and x2 values are larger than 0. So this is my equation. So first of all, I will solve the equation based on the graphical method, and then we will solve the same equation by using the simplex method so that we can verify the answers of both of the method. Okay. So what we have done yesterday, we have calculated the 2 points for both of the equations. This is equation number 1, this is equation number 2. So x1 and x2 values I am going to calculate here. When x1 will be 0 in this equation, then the value of x2 will be 5 3s are 15, so its value will be 3. And when the value of x2 will be 0 in this equation, then the value of x1 will be 3 5s are 15, that means 5. Likewise, in the second equation we can calculate x1 and x2 values here. If we put the value x1 equal to 0, in that case the value of x2 will be 5, and when the value of x2 will be 0, the value of x1 will be 2. And then we will draw my axis. This is x1 axis, this is x2 axis, and the maximum value on the x1 axis is 5. Likewise for the second axis also 1, 2, 3, 4 and 5, and 1, 2, 3, 4 and 5. And what will be the 2 point for the first line? This is 0, 3, 0 and 3. This is the 3. This is 3. And here 5 and 0, 5 0 will be this one. ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई. And second line is 0 5 and 2 0. 0 5 0 and 5 this one, and 2 0 2 0 is this one. So if I am joining the point, then it will be like this. Okay, so this will be the point of intersection. So this will be the first point, that means 0 0. And actually this is the problem where all the values are less than. Okay, so less than means it is on the left side of the line. So what will be the area? This is area of interest. Okay, this will be the area of interest, and this will be the first point, and this is 2 0 second point. This is the next point, that means 0 and 3. And this is the intersection point, and I am going to solve this point. What will be this point? If we solve these two equations, then first of all this equation should be multiplied by 5. तो ये हो गया 15 x1, ये हो गया 25 x2. ठीक है, तो I have already solved this one, and the point will be 20/19. ठीक है, वक्त को बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, क्योंकि मेथड तो कल ही हमने आपको बता दिया था. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, है ना. इसमें जो है 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसमें 3 का कर देंगे, तो x1 आपका कट जाएगा और x2 की वैल्यू आ जाएगी. फिर x2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वैल्यू आपकी आती है. अच्छा,
अब इन वैल्यूज को, जो कि 4 वैल्यूज आपकी आई हैं, यू हैव टू पुट इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z वैल्यू एट पॉइंट दिस 0 0. तो 0 0 रखोगे तो वैल्यू आपकी 0 आएगी. Likewise, when you will put the second value, suppose this is point A, this is point B, this is point C and this is point O. ठीक है, इस तरीके से पॉइंट के नेम आपने दे दिए. तो फॉर पॉइंट 2 0 व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 5 10. इसी तरीके से z जो है 20/19 एंड 45/19 पुट करेंगे आप, तो कितना आएगा? 20 बचे 100/19 आएगा. और यहाँ पर 45 दिया 135, 135/19 आएगा. और ये हो गया 235/19. एंड फॉर द लास्ट व्हाट द पॉइंट 0 and 3, 0 3 करोगे तो ये वैल्यू आएंगी 9. तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये 10 है. तो अगर 19 10 190 होगा तो दिस वैल्यू विल बी लार्जर देन 10 एंड देयरफॉर इट विल बी द ऑप्टिमम सोल्यूशन. ठीक है, दिस विल बी द ऑप्टिमम सोल्यूशन. सो आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड. नाउ अब हमें सारे आंसर पता चल गए हैं. अब हम सेम प्रॉब्लम को अब हम जो है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं. अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए. by using simplex method. Using simplex method. सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, कैसे सुन रहे हैं? तो सबसे पहले इक्वेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा. लिख लीजिए इक्वेशन. क्या था इक्वेशन? मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2. ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन था. दूसरा इक्वेशन क्या था? 3x1 प्लस 5x2, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 15. अब यहां पर एक चीज का ध्यान इसमें देना है. In the simplex method, you have to write all the equation in the equality format. ठीक है, इसमें ये दोनों इक्वेशन आपको इक्वलिटी के फॉर्मेट में आप लिखते हैं. तो इक्वलिटी के फॉर्मेट में तो नहीं है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है. तो यहाँ पर जो है एक स्लैक वेरिएबल आपको ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, दोनों ही इक्वेशन चूंकि लेस देन इक्वल टू हैं, इसलिए स्लैक वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि अगर वैल्यूज आर लेसर देन द राइट हैंड साइड, देन यू कैन ऐड वन मोर वेरिएबल इनटू दिस इक्वेशन. ओके, सो आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर वेरिएबल इनटू दिस. तो आई एम गोइंग टू ऐड ए वेरिएबल x3. ओके, I am going to add variable x3 into this one, and when we will add this x3 variable, then suppose its value will be equal to 10. ठीक है, जो वैल्यू पहले लेसर देन था, अब चूंकि 15 है ये, सॉरी, its value is 15. तो ये आपका वैल्यू यहां पर 15 आ गया. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या था आपका? 5x1 प्लस 2x2. 5x1 प्लस 2x2. ठीक है, यहां पर वैल्यू आपने क्या ऐड किया? x4. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 10. अब यहां पर x3 आपने जोड़ा, यहां पर x4 जोड़ा. तो इक्वेशन की सिमिलैरिटी के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई x4, और यहां पर इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाइड बाई x3 आप लिख सकते हैं, ताकि हर इक्वेशन में द वेरिएबल्स विल बी सेम. ठीक है, नहीं तो यहां पर x3 होगा, यहां x4 होगा, तो इसमें जो है सिमिलैरिटी की बात नहीं आ पाएगी. तो इस तरीके से आप इनको इक्वलिटी के फॉर्मेट में लिख लेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर जब आपने इक्वलिटी के फॉर्मेट में लिख लिया,
तब यहां पर एक टेबल आपको बनाना होगा, CB XB। अभी मैं आपको मतलब जो है इसका बताता हूं, आप परेशान न होइए। B X1 X2 X3 एंड X4, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आपके समझ में आ रही होंगी। B क्या है? B यानी ये जो राइट हैंड साइड, क्योंकि मैट्रिक्स जब आप लिखते हैं तो AX इक्वल टू B के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो B जो है राइट हैंड साइड वाला है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका AX है और इस साइड वाला B है, तो B हमने इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, X1 X2 X3 X4 भी समझ रहे हैं। These are the variables which we have used here. The new thing is XB and CB. तो XB is actually the basic variable. Basic variable means these are the variable for which the constant is unit, ठीक है। जिसके लिए अगर आप इसकी जो है मैट्रिक्स बनाए तो वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। तो X3 और X4 को अगर आप सिर्फ ले करके मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगा? 1 0 0 1। दिस इज ए यूनिट मैट्रिक्स। देयरफॉर X3 and X4 will be treated as the basic variable, and therefore here I can write as X3 and X4 are the basic variable. Okay, B stand for basic, and CB is the coefficient of these two variables. Okay, so here for the X3 the coefficient for the first the value of CB will be 0 here. This is the cost of basic variable, ठीक है। because in the this matrix the cost of X3 is 0, and for the second one the cost of this value is 0 also, ठीक है। चूंकि एक इक्वेशन में इनकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, therefore the cost of the variable is 0, ठीक है, क्योंकि आपने अलग से जोड़ा है तो इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। एंड वी कैन ट्रीट द कॉस्ट ऑफ these two values as 0 at the initial point of time, है ना। अभी आप इनको स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी वेरिएबल जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसको इनिशियलाइज जो है किससे करते हैं? 0 से करते हैं। तो यहाँ पर इनको इनिशियलाइज कर देंगे। B क्या था? B आपको पता ही है, ये आपका 15 है, ये आपका 10 है। अब X1 X2 X3 X4 दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट आप लिख लीजिए। क्या है? 3 5 1 0। तो 3 5 1 0। दूसरे इक्वेशन का क्या है? 5 2 0 1, 5 2 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो है यहां पर लिख लीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। यहां पर मैं लिख ले रहा हूं CJ। CJ क्या है? CJ ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख लिया 5 3 0 0। चूंकि यहां पर X4 और X3 दोनों के कोएफिशिएंट आपके 0 हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्ट कितनी है? 0 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे जो भी वेरिएबल हैं इनकी कॉस्ट आपने यहां पर लिख ली। अच्छा, लिख तो लिया। हमारा एम क्या है? हमारा एम यहां पर है कि बेसिक वेरिएबल जो X3 और X4 हैं जिनको हमने अलग से जोड़ा है, इन बेसिक वेरिएबल को बदल करके X1 और X2 को बनाया जाए, क्योंकि X1 and X2 are the actual variable. So if the actual variable can be converted into the basic variable, then only we can solve the equation, ठीक है। We can solve the equation. तो हमारा एम यही होगा कि हम इसमें मैट्रिकल कैलकुलेशंस इस तरीके से कराएं कि ये जो X1 X2 है इसको हम किसी तरीके से बेसिक वेरिएबल जो है बना सकें। यही हमारा इसमें एम होगा। तो इसके लिए हम कुछ चीजें जो है आप जो है ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि यही स्टेप हमें बार बार रिपीट करने हैं। अच्छा, तो इसमें हम सर, हाँ सर जितने हमारे वेरिएबल्स इक्वेशन में उतने ही हम लोग ऐड करेंगे? नहीं, X1 X2 तो इसी वजह से हमने X3 X4 बोल दिए। और नहीं बेटा, इसमें क्या है ना कि हर इक्वेशन में एक वेरिएबल इसलिए जोड़ना पड़ा है क्योंकि वो इक्वेशन लेस देन था ना। हमें यहाँ पर लेस देन के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर इक्वेशन को इक्वलिटी के फॉर्मेट में चाहिए। सिंपलेक्स मेथड कहता है
कि जो भी कांस्टेंट इक्वेशन है इनको आपको इक्वलिटी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए स्लैक वेरिएबल या तो जोड़ेंगे, अगर यही आपका जो है लार्जर देन होता तो हम इसमें वेरिएबल को -x3 करके जोड़ते, तो वो आपका जो है रिलैक्स वेरिएबल होता, स्लैक वेरिएबल है। तो हर इक्वेशन में एक वेरिएबल ही आपको जोड़ना है। दूसरे इक्वेशन में अच्छा, एक वेरिएबल आपने जो है इस इक्वेशन में जोड़ा, एक वेरिएबल आपने फर्स्ट इक्वेशन में जोड़ा, तो इस तरीके से 2 वेरिएबल हो गए। अच्छा, तो सर इसीलिए दूसरे को हमने 0x4 यस है ना। इसमें एक्चुअल में तो वैल्यू हमने एक ही जोड़ी है, लेकिन चूंकि जो है दोनों इक्वेशन जो है सिमिलर टाइप के लगे, इसलिए जो है दूसरे को भी हमने जो है 0 लगा के उसमें ऐड कर दिया है कि वो भी आपका है ना एक आपका जो है सिमिलरिटी टाइप का बना रहा है। जी सर, समझ गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब हम एक टर्म को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एंड द टर्म इज ZJ माइनस CJ। CJ तो आपके सामने है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट। ZJ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ZJ जो है, ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या है ZJ? क्या है कि CB और X का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये CB और X का मल्टीप्लीकेशन है। तो यानी कि इस पॉइंट पर क्या होगा, CB मल्टीप्लाइड बाई X1, यहां होगा CB मल्टीप्लाइड बाई X2, यहां होगा CB मल्टीप्लाइड बाई X3, और यहां होगा CB मल्टीप्लाइड बाई X4, ठीक है। और ये आपका जो है दोनों रो में होगा, है ना, दोनों रो में ही होगा। तो CB की वैल्यू क्या है आपकी 0, और X1 की वैल्यू है 3, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसी तरीके से इस वाले रो में 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि क्या हो गया 0। अब दोनों वैल्यू को जोड़ दो, यानी कि आपने क्या किया 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया, और ये वैल्यू इसकी वैल्यू आई यानी कि 0। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, ये आपका जो है पॉइंट मत समझ लीजिएगा इसको, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी, इसको भी, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन। तो ये एक्चुअल में क्या करना है ये आपके समझ में आया। CB यानी कि कास्ट फंक्शन जो है, कास्ट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन उस वेरिएबल में आपको करना है और दोनों की वैल्यू को जोड़ देना है, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर एक Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इस Z की वैल्यू जो आपकी आई है, इसको आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से घटा देना है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से घटा देना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पर 5 3 0 0, तो 0 में से इस 5 को घटाना है, क्या आ गया -5। 0 में से इस 3 को घटाना है -3, 0 में से 0 0 हो गया, 0 में से 0 0 हो गया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए। एक्चुअल में हमने क्या किया है, जब हम इसको ZJ की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम इसमें ये काम कर रहे हैं कि वेरिएबल में कास्ट फंक्शन, जो बेसिक कास्ट फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी क्या है X3 एंड X4, यहां पर आपने बेसिक वैल्यू मानी है। तो बेसिक वैल्यू में ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक नए तरीके से कैलकुलेट आपने किया, ठीक है। नए कोफिशिएंट के बेस पर आपने इन बेसिक इक्वेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया, दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करके, और इस तरीके से जो एक नया जो है इक्वेशन आपका क्रिएट हुआ, इस इक्वेशन में से इसके कोफिशिएंट को आपने माइनस किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पता चला कि इक्वेशन जो है ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है अभी, ठीक है, क्योंकि आपका एम क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैप कराना। तो यहां पर ये CJ एक तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z जो है वो इक्वेशन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कितना
डिस्टेंस पर है, ये चीजें यहां पर कैलकुलेट होके आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब ये देखिए कि अब अच्छा, एम आपको याद रखना है। एम क्या था? एम आपका ये था कि बेसिक वेरिएबल को आपको बदल के x1 x2 करना है। ठीक है, क्योंकि x3 x4 तो अलग से ऐड किया हुआ है, x3 x4 का कोई मतलब नहीं है। हमें x1 x2 में इसको जो है कन्वर्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होगी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है बेसिक में आएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि -5 -3 इन दोनों में से सबसे ज्यादा निगेटिव टर्म जो है कौन सा आया? x1 के लिए आया है ना। ये देखिए x1 के नीचे है ना भाई, x2 के नीचे वाला -3 है, x1 के नीचे वाला -5 कैलकुलेट हो गया, यानी x1 ज्यादा निगेटिव हो गया। तो x1 की बोली सबसे ज्यादा लग गई कि हम जाके बेसिक में बैठेंगे। तो x1 क्या हो गया? इसको बोलेंगे कि ये आपका इंटरिंग वेरिएबल हो गया, इंटरिंग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव है। अच्छा, इंटर तो करेगा लेकिन किसको रिप्लेस करेगा? क्योंकि यहां पर x3 x4 दो चीजें हैं, तो अब हमको ये पता करना होगा कि किसको इसको जो है रिप्लेस करना है। ये तो पता चल गया कि x1 को यहां पर आना है, अब ये पता करना है किसको हटाना है। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, इनको बोलते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो, अच्छा, मिनिमम रेशियो में क्या काम करते हैं? मिनिमम रेशियो में अभी जिस वैल्यू को आपने यहां पर कैलकुलेट किया है कि इसको इंटर करना है, अब ये अपना जो है जुगाड़ करेगा हटाने वाला, है ना। ज्यों ही आपने ये कहा कि तुम जो है युवराज हो, तो अब यहां पर दो मंत्री बैठे हैं, तो ये जो है मंत्रियों को हटाने का जुगाड़ शुरू कर देगा। तो यानी कि इसके जो कोफिशिएंट हैं उनसे आप यहां पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 15 और 10 बी की दो बी हैं, तो यहां पर 15/3, यहां पर 10/5। तो तो ये रेशियो हो गया 15/3 x1 का, और यहां पर x1 का रेशियो हो गया 10/3। तो ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग। तो मिनिमम रेशियो कौन सा हो गया? मिनिमम रेशियो नीचे वाला हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 3.33 है और ये तो 5 है। तो जिसका रेशियो मिनिमम है उसी को रिप्लेस करेगा, है ना। जो है लड़ाई में सर, हाँ सर 10/3 कैसे हुआ? यहां पर देखो मिनिमम रेशियो, अभी हमने ये चीज जाना है कि इंटरिंग वेरिएबल x1 है। ये बात समझ में आ गई थी आपके? यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने z की वैल्यू कैलकुलेट की थी। z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी? ये cb का सारे वेरिएबल में मल्टीप्लीकेशन करके ऐड, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें दोनों जोड़ दिया, इसका इसमें दोनों जोड़ दिया, इसका इसमें दोनों जोड़ दिया। इस तरीके से 0 0 ही वैल्यू इस केस में आई, है ना। अब ये जो वैल्यू आई, इसको जो है cj यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है उसमें से आपने घटाया, तो ये वैल्यू आई। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव है वो आपका इंटरिंग वेरिएबल होगा, क्योंकि आपका एम ये है x3 x4 को आपको हटा करके x1 x2 लाना। तो ये तो क्लियर हो गया कि x1 पहले घुसेगा, किसको हटाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मिनिमम रेशियो का कंसेप्ट है। तो जिस वैल्यू को आपने कहा है कि तुम जो है युवराज हो, वही जो है प्रयास करना शुरू करेगा। तो यहां b की वैल्यू में इसकी कोफिशिएंट का भाग होगा। x1 के इस वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट 3 है, इस वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट 5 है, और जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आपका 15 एंड 10 है। तो 15/3 और 10/5, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया ना इतना? तो यहां पर रेशियो 5 आया, यहां रेशियो आपका 3.33 आया। तो जाहिर तौर पर इसमें x4 जो है हल्का पड़ रहा है, क्योंकि इसका रेशियो कम है, ठीक है। तो ये बात आपने निकाल ली कि x4 क्या होगा?
ये आपका आउट गोइंग वेरिएबल होगा, आउट गोइंग वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है क्लियर हो गया कि x4 को हटा करके x1 आपको करना है। तो ठीक है, चलिए किया जाए। तो हम इस टेबल को फिर से लिखना पड़ेगा अब हमको, क्योंकि तो CB हो गया, XB हो गया, B हो गया, ये x1, x2, x3 एंड x4। ये एक में था, ये अलग था और ये एक में था। इस तरीके से ये आपने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि दोनों ही आपको दिखाई दे। दिख रहा है ना पूरा? अच्छा, कौन किसको हटाएगा? x1 x4 हटाएगा। तो ठीक है, यहां पर हम x1 लिख देते हैं। अच्छा, x1 हटाएगा तो अपने कोफिशिएंट को मिलाएगा। x1 का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका x1 का कोफिशिएंट क्या है? 5 था, है ना? ये देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट क्या था? 5 था, है ना? कॉस्ट फंक्शन। तो x1 की कॉस्ट कितनी है? 5 है। तो ये अपने कॉस्ट के साथ यहां पर आ गया। ठीक है। अच्छा, x3 अभी जो है ना, x3 जो है अभी आपका हटा नहीं है, ये आपका डटा हुआ है। अच्छा, x1 के लिए अब वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो भी वैल्यूज थे, ये सारे वैल्यूज x4 के लिए थे। अब जो है यहां पर x1 ने x4 का तख्ता जो है पलटा है, तो x1 अब जो है सारे अपने ऑफिसर्स को लाएगा यहां पर। ठीक है, इनके जो है ऑफिसर सारे के सारे अब जाएंगे। तो अब ये अगर अपने सारे वेरिएबल्स को लाएगा तो किस तरीके से ये जो है वेरिएबल्स को लाएगा? अपने वैल्यू से भाग देगा ये। ठीक है, यानी कि 5 इसका क्या था? इसका कोफिशिएंट था, है ना? x1 का कोफिशिएंट क्या था? 5 था। तो ये सारे वैल्यू को सबसे पहले तो 5 से भाग दे देगा, है ना? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि 5 से भाग क्यों देगा? क्योंकि इसको बनना है बेसिक वेरिएबल। ठीक है, और बेसिक वेरिएबल की पहचान क्या है? अभी मैंने डेफिनेशन में बताया है कि ये यूनिट मैट्रिक्स का पार्ट होता है ना? बेसिक जो वेरिएबल होते हैं वो जो है यूनिट मैट्रिक्स के पार्ट होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स के पार्ट बनने के लिए इसको अपने कोफिशिएंट को 1 करना होगा। जैसे कि जब x3 x4 जो है बेसिक वेरिएबल थे तो इनके कोफिशिएंट कितने थे? 1 थे ना जो है। तो अगर x1 को बेसिक वेरिएबल बनना है तो इसको सबसे पहले तो इस नई टेबल में अपने कोफिशिएंट को 1 करना होगा। तो अगर इसको अपने कोफिशिएंट को 1 करना होगा तो 5 से भाग करना होगा। तो 5 से जब भाग देंगे तो मैट्रिक्स का रूल है कि अगर भाग देना है तो पूरे रो या फिर पूरे कॉलम में भाग देना है, और नहीं तो फिर जो है किसी में भाग नहीं देना है। तो भाग तो देना ही है, क्योंकि इसको 1 आपको बनाना है। तो 1 से भाग दिया तो ये 1 हो गया। यहां भी जो है 5 से आपको जो है डिवाइड करना होगा, तो ये 2 हो गया ना। 10/5 2, 5/5 1, 2/5 इसको एज इट इज लिख लीजिए 2/5, 0/5 0 हो गया, 1/5 ये हो गया। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, x3 वेरिएबल अभी है। अब x3 ये सोच रहा है कि x1 ने अपने ऑफिसर बदल लिए हैं, तो हमको भी इसके साथ जो है सेटिंग बना के रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब तक इसकी सेटिंग x4 के साथ थी, अब ये x1 के मुताबिक अपनी सेटिंग करेगा। ठीक है, तो अब ये जो है कहेगा कि हम जो है इस वैल्यू के मुताबिक अपनी सारी वैल्यू को बदलेंगे। तो किस तरीके से बदलेगा ये? इस तरीके से बदलेगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना? इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि अब ये जो है बेसिक वेरिएबल का पार्ट जो है ये आपका बनना चाह रहा है ना, तो बेसिक वेरिएबल के पार्ट के लिए अगर ये 1 है तो इसके सामने वाला 0 लाना चाहिए। जैसे पहले ये 1 था तो ये 0 था, ये 1 था तो ये जो है 0 था। तो उस लिहाज से क्या है कि अगर ये अपने आप को 1 बन लिया है तो x3 कहेगा कि अब मैं खुद को 0 बना लेता हूं। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा
कि इसमें से कुछ घटाना होगा। ठीक है, तो क्या चीज घटाएं कि ये आपका 0 बन जाए। तो ये 3 है और इसकी वैल्यूज ये है ना भाई, है ना। इस वैल्यू को मत लेना क्योंकि ये वैल्यू तो x4 की है, x1 की वैल्यू तो ये है ना, और x3 को x1 के मुताबिक ढालना है। तो इसकी वैल्यू 3 है तो ये 1 है। तो अगर इसको खुद को 0 करना होगा तो तो आपको क्या करना होगा, x1 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करके x3 से माइनस करना होगा। ठीक है, x1 यानी इसको ऐसे लिख लो, x3 में से 3 का मल्टीप्लीकेशन x1, ये आपको करना होगा, है ना। तो अगर 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 माइनस 3 ये आपका 0 बन जाएगा। तो आइए करें। चूंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन आपने किया है तो सारे वैल्यू में आपको करने होंगे। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं x3 की सारी वैल्यूज लिख ले रहे हैं। 15 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया ना। 15, 3, 5, 1 एंड 0। इसी तरीके से x1 की वैल्यू लिख लीजिए विथ 3 का जो है मल्टीप्लीकेशन भी करना होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 5। कितना हो गया जरा से जोड़ के बताओ। 3 दूनी 6, 15 में से 6 गया 9, ये आपका 0 ही हो गया। ये कितना हो गया आपका बताओ भाई। 3 दूनी 6 बटे 5, 55 25, 25 में से 6 गया 19, 19 बटे 5। ध्यान से बताइए, नहीं तो गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा। 3 दूनी, अच्छा हाँ ठीक है। 1 माइनस 0 तो ये तो आपका 1 ही हो गया, और ये 0 माइनस 3/5 तो ये हो गया -3/5। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 19/5, ये हो गया 1, ये हो गया -3/5। ठीक है भाई, तो एक वेरिएबल को हमने एक्सचेंज कर लिया। इतनी बात जो है आपके समझ में आई कि नहीं? हेलो, कोई है कि? यस सर समझ आई, है ना। तो मतलब आधा काम आपने कर लिया, एक वेरिएबल बदल गया कम से कम, है ना। एक वेरिएबल आपने बदल दिया, x4 को हटा के x1 कर लिया। चलिए अब आइए दूसरे वाले का काम तमाम किया जाए। फिर से वही काम करना होगा, z माइनस सी जे, है ना। सबसे पहले z आपको जो है इस केस में कैलकुलेट करना है, फिर z माइनस सी जे करना है। तो सबसे पहले हम सी जे की वैल्यू लिख लें क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो है छोटा सा लिख लेते हैं, किसी और कलर में लिख लेते हैं। सी जे क्या है? 5, 3, 0 एंड 0। ठीक है, सी जे की वैल्यू आपने यहाँ पर लिख लिया है। जेड जे हमें फिर से कैलकुलेट करना है। क्या तरीका बताया था? कास्ट फंक्शन में वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, कास्ट फंक्शन में वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का सम। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, 0 + 5 = 5। ठीक, इसका इसमें होगा तो 0, ये तो सबको जो है 0 बना देगा, है ना। बस खाली नीचे वाला ही यानी लिख दिया जाए हम लोग। तो 5 ये हो गया, तो ये 2 आपका बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा ना। ऊपर वाला तो सबको जो है 0 कर देगा, यानी कि 0 + 5 5 होगा, 0 + 2 2 ही होगा, 0 + 0 0 ही होगा, और 0 + 1 1 ही होगा। तो z आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यू हैव टू राइट zj माइनस cj, जैसे कि ऊपर आपने किया था। यहां पर क्या किया था? cj आपका यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 5 - 5 इट बिकेम 0। 2/5 - 3
नहीं सॉरी 2 minus 3, 2 minus 3 is -1, 0 minus 0 0 and 1 minus 0 is 1. तो अब की आप देख रहे हैं कि अपने आप क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल बदलने के लिए लाइन में आ गया है ना। रूल मैंने ये बताया था, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव वही जो है जाके बदलेगा। तो ये तो खुद को बदल लिया, यही जो है आपका ज्यादा है ना। इन चारों में सबसे ज्यादा निगेटिव यही है, तो यानी कि ये आपकी क्या हो गया, इंटरिंग वेरिएबल, इंटरिंग वेरिएबल हो गया। ठीक, दूसरा काम क्या है, मिनिमम रेशियो आपको निकालना है, जैसे कि हमने पिछली बार निकाला था मिनिमम रेशियो। क्या करेंगे, किसका कोफिशिएंट लेंगे बताओ, किसका कोफिशिएंट लेंगे और जो है किसके साथ रेशियो निकालेंगे। सर x3 का x2 का कोफिशिएंट लेंगे। x2 का कोफिशिएंट क्या है सर, x2 का कोफिशिएंट क्या है, यही है ना 19/5। ठीक है, तो 19/5 यहां पर लेंगे और 19/5 का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। भाई देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब x2 खुद को 1 जो है बनाना चाहेगा ना, है ना। तो x2 अगर खुद को 1 बनाना चाहेगा तो इसी के कोफिशिएंट को लेंगे, तो इसके कोफिशिएंट का सब में भाग होगा, तो इसीलिए जो है इसके कोफिशिएंट को ही लेंगे। अब रेशियो आपको चेक करना है किसको हटाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है x1 को तो नहीं हटाएगा, लेकिन ये चीज जो है मैथमेटिक्स को जो है बोलनी चाहिए, है ना। तो अपने आप देखिएगा कि x3 के लिए ही वैल्यू इसकी कम आएगी। तो 9/19/5, 9/19/5 का मतलब 45/19 है ना, क्योंकि 9/19/5 5 गया ऊपर, तो 9 × 5 = 45। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 2/2/5 है ना, 2/2/5। तो 10/2, 10/2, क्योंकि 5 गया ऊपर, तो या 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू आई 5। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, ये 5 है। 19 × 7 19 × 76 19, तो इसकी वैल्यू कम है ना। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि अपने आप कम है। मिनिमम रेशियो इज दिस वन। तो दिस विल बी द क्या होगा, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो इस बार अपने आप जो है क्या होगा, x2 आपका इंटरिंग वेरिएबल हो गया, और ये जो है किसको रिप्लेस करने वाला, x3 है ना। इसके सामने x3 है आपका, तो x3 को ये अपने आप रिप्लेस करेगा। तो कर दीजिए रिप्लेस, x3 को आप यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। तो हम फिर से इस टेबल को बनाने जा रहे हैं। CB XB B x1 x2 x3 x4, यहां पर x3 को रिप्लेस करेगा x2। ठीक है, और x2 का कोफिशिएंट क्या है यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट फंक्शन कितनी है इस x2 की, 3 है। तो हम यहां पर x2 के सामने 3 लिख देंगे। x1 साहब ऑलरेडी जो है विराजमान थे 5। ठीक है, अब x2 आपका नया आया है, तो ये सारे अपने ऑफिसर्स को बदलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चाहेगा कि ये चीज इसकी 1 हो जाए, है ना, ये चीज इसकी 1 हो जाए, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल बनना चाहता है। तो यानी कि 19/5 से पूरे इक्वेशन में भाग दे देगा। ये इसको 1 जो है बनाने के लिए ये पूरे इक्वेशन में भाग दे देगा, किससे, 19/5 से। तो ये चीज 1 जो है आपकी बन जाएगी, जब इसको भाग देगा ये चीज 0 बन जाएगी। 19/5 से भाग देगा तो ये 5/19 बन जाएगा, और 19/5 से भाग देगा तो ये -3/19 बन जाएगा, और 9 में भाग देगा तो 9/19/5 45/19 आ जाएगा, 45/19। ठीक है,
अब जो इसका साथी है वो कहेगा कि हम भी अपने वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग बदल लेंगे, ठीक है। तो ये चाहेगा कि ये चीज जो इसका नया जो है 1 आया है, इसके सामने वाले वैल्यू इसकी 0 हो जाए, ठीक है। तो वही ट्रिक यहां पर फिर से अप्लाई होगा, यानी कि x1 अपने वैल्यू में से किसको घटा देगा, x2 की वैल्यू को। चूंकि इसको अपने वैल्यू को क्या करना है, अच्छा x2 की वैल्यू ये है ना, आप इसको मत समझ लीजिएगा क्योंकि ये तो x3 की वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू ये है, तो यानी कि x2 की वैल्यू को आपको इसमें घटाना है हाँ ठीक है, ठीक है। x1 की वैल्यू ये, हाँ इसमें 2/5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 2/5 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये वैल्यू इसकी घटेगी, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम यहां पर लिख लें, क्या है 2, यहां से देख लो 2 1 2 1 2/5 0 एंड 1/5। और इसी तरीके से इनकी वैल्यू क्या है, 2/5 का तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही है, 2/5 2/5 2/5 एंड 2/5। x2 की वैल्यू कितनी है 45/19, 45/19। ये 0 है, ये 1 है, ये 5/19 है और ये -3/19 है। कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, सबसे पहले आसान वाली कर लें, 1 - 0 0 हो गया, और ये नहीं ये 1 होगा ना, 1 - 0 तो ये 1 होगा, और ये 2/5 - 2/5 ये 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला थोड़ा सा टाइट मामला है, इसको पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया 45 दूनी 90, और कुछ काट के थोड़ा आसान कर लिया जाए, 5 9 45, हाँ थोड़ा सा आसान हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 19 दूनी 38, 38 में से 18 गया 20, तो 20/19। अच्छा और ये 0 में से इतना घटा तो अच्छा 5 तो कट गया, तो सिंपल हो गया -2/19 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी वैल्यू जब आपने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 1/5 प्लस 3 दूनी 6 बटे यहाँ पर 19 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये 19 में से 3 दूनी 6, 19 में से 6 गया कितना हो गया 13, हाँ नहीं यहाँ तो ऐड होगा ना, 19 और 6, 19 6 कितना हो गया, 19 6 25, 25/5 मल्टीप्लाइड बाई 19, 55 25 5/19 आ गया, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई हैं। तो ये आपका हो गया 20/19, x1 आपका हो गया 1 0 -2/19 और ये 5/19। ये चीज सबके समझ में आएगी नहीं यहाँ पर, हैं? हेलो, यस सर, यस सर। अब हम फिर से यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। z यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और दोनों का सम। तो 3 0 हो गया, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में आपने किया तो कितनी वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पर cj की वैल्यू भी हम लिख देते हैं 5 3 0 0। तो zj की वैल्यू हो गई 3, यहाँ हो गई 5 और यहाँ पर 3 हो गई, और यहाँ पर वैल्यू कुछ आएगी, यानी कि 3 बचे 15/19
और 5 दूनी 10, 15 में से 10 क्या 5/19 और यहाँ पर 16/19 और ZJ माइनस CJ करते हैं हम, तो इसमें से ये चीज घटाते हैं तो ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 5/19 हो गई, ये 16/19। तो आप देख रहे हैं कोई वैल्यू निगेटिव है? नहीं है ना। और मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू जब निगेटिव होगी तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा निगेटिव x1 था, तो x1 यहाँ पर बदलने की कोशिश किया। दूसरे केस में सबसे ज्यादा निगेटिव x2 था, तो x2 खुद को बदलने की कोशिश किया। यहाँ पर तो कोई निगेटिव है ये नहीं है ना, तो कोई अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि जो बी का आंसर आया यही आपका फाइनल आंसर है, 45/19 एंड 20/19, यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम इसको अपने ग्राफिकल मेथड से जरा मैच कराएं कि क्या ये आंसर वही है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट आया है ये क्या है, ये आपका 45/19 एंड 20 है ना, उसमें x1 जो है नीचे था ना, तो 20/19 45/19, यानी कि वैल्यू सेम आई है यहाँ पर, है ना। वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। तो वैल्यू अगर सेम आई है x1 20 देखो वैल्यू आपकी सेम आई है। अब इस वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप जब पुट करेंगे, देखो यहां पर क्या है कि 4 वैल्यू आपने निकाली और हर वैल्यू को अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के आपने चेक किया। यहां क्या है, सीधे सीधे वही वैल्यू ही निकल के आ गई जिसके लिए आपका ऑप्टिमम वैल्यू आएगा, है ना। ये बी की वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ गई, जिसको कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पुट करेंगे तो वैल्यू उसकी ऑप्टिमम आएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, एक बार फिर से लिख लिया जाए, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। तो इसकी वैल्यू जो है सॉल्व करिएगा आप लोग, और जो भी वैल्यू आएगी वही इसकी ऑप्टिमम वैल्यू निकल के आएगा ना। शायद ग्राफिकल में हम लोगों ने सॉल्व किया हो तो वहीं से सीधे उठा लेते हैं। ये आई है 235/19, इसकी वैल्यू कितनी आई है 235/19, 235/19। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा सेम आया है, ठीक है। ये मेथड जो है आपके समझ में आया, सिंप्लेक्स मेथड जरा सा लेंथी था, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया जो है सीजे की वैल्यू किस तरीके से करते हैं तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। हेलो भाग्य क्या? हाँ। तो अगर आपके समझ में आया तो एक मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग इसको करिएगा और हमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताइएगा, ठीक है। सर एक बार मिनिमम रेशियो फिर से बता दीजिए कैसे निकालते हैं। मिनिमम रेशियो फिर से बताना है और सर पहले वाले टेबल से बता दीजिए। पहला टेबल हमारा कौन सा है, ये है यहाँ पर, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। देखो मिनिमम रेशियो कुछ नहीं है, जो यहां पर जो इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। जैसे ये चीज जो है क्लियर हो गई है कि x1 यहां पर एंटर करेगा। अब x1 की वैल्यू यहां पर दोनों इक्वेशन में है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 5 है। अब b की वैल्यू के साथ इनका रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि 15/3 और 10/5, ठीक है। सिंपली यही काम किए हैं। तो सर आपने 10/3 लिखा है इसमें, 10/5 होगा बेटा, ये ठीक है, सॉरी है ना, ये 5 होगा, ये 2, हाँ ये 5 होगा ना। 10 में 5 का जो है यहाँ पर जो डिवीजन करना है, ठीक है, गुड, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम किया है। यहाँ पर देखो 2/2/5, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरिंग वेरिएबल x2 है, तो यहाँ पर क्या है कि 9/19/5,
और 2/2/5, ठीक है। Yes, तो जी सर, समझ हाँ है ना। वहां चूंकि x1 था तो x1 की वैल्यू का भाग आपने दिया था, यहाँ पर x2 जो है आपका लाइमलाइट में है तो x2 की वैल्यू को यहाँ पर भाग देंगे आप, सिंपली यही है। अब मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन जल्दी से दे दूं हमारे, फिर उसके बाद मैं बंद करूं आज का लेक्चर। मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। इस बार मैं एक वेरिएबल बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आपके पास खूब समय है। x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 9 और 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ पर 2x1 प्लस माइनस, ये माइनस है, x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू 8। x1 x2 x3 ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 वेरिएबल का मामला आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर इक्वेशन में एक वेरिएबल आप जो है स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं? यस सर। इसमें x4 जोड़ देना, इसमें x5 जोड़ देना, इसमें s6 जोड़ देना, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो 3 वेरिएबल जब आएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, उसी तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 ही बार में ये आपकी चीजें आ गई हैं, वहां पर जो है 3 बार में आएंगी, है ना। तो 3 बार में जो है एक वेरिएबल को रिप्लेस करेगा और लास्ट में वैल्यू आपकी वही आ जाएगी, ठीक है।